ابھی حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد آبائنا وسيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المحرومين عن حقهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تؤمنون بالله. صلوات محمد وآله. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم، آپ سب کا اس بارگاہ میں اس مجلس عزا میں شریک ہونا، بانیان کا یہ فرش عزا بچھانا اور آپ سب کا قدم بقدم چل کر اس مجلس میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ آپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے بزرگوں کی، آپ کی مستورات کی حفاظت فرمائے. انہی دعاؤں کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. سورہ نساء آیت نمبر 59. بسم اللہ بسم اللہ. دیکھیں، موضوع کے عنوان سے جس آیہ مجیدہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کا نام ہے آیت اولی الامر. بسم اللہ. قرآن مجید جیسے تقسیم کیا گیا 30 پاروں پر، اس کے اندر 114 سورتیں، ہر ایک سورت کا اپنا اپنا نام ہے. سورتوں کے اندر آیات کا بھی اپنا اپنا نام ہے. آیت اولی الامر، آیت ولایت، آیت تطہیر. بسم اللہ. ہر ایک آیت کا اپنا اپنا ایک نام ہے. جس موضوع سے وہ گفتگو کرتی ہے اس موضوع کو مد نظر رکھ کر اس کا نام رکھا جاتا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. آیت اولی الامر شیعت کی بقا ہے. شیعت کی بقا کا دار و مدار آیت اولی الامر پر ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. کیونکہ شیعت اگر آیت اولی الامر نہ ہو تو شیعت کا وجود بھی سمجھ میں نہیں آتا. جس طرح دین کی تکمیل کے لیے علی کے وجود کا ہونا ضروری ہے، بسم اللہ. بسم اللہ.
उसी तरह अली की तकमील के लिए फातिमा का होना जरूरी है। मरहबा मरहबा। तवज्जो है ना मेरी तरफ? थोड़े से करीब होकर आ जाएं, थोड़े से करीब हो जाए। सवाल पढ़ते हैं और आगे होते हैं। चलिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहल बैत के दुश्मन ते लानत, परवरदिगार आलम सूरह निसा की आयत नंबर 59, आयत नंबर 59 को अगर आप देखेंगे, एक तरफ से 9 है, दूसरी तरफ से 5। एक तरफ से 9, दूसरी तरफ से 5। 9 और 5 को अगर आपस में मिला दें तो 14 बनते हैं। समझा है कि नहीं? 14 को अगर आपस में मिला दें, 4 और 1 को, तो फिर भी 5 बनते हैं। यानी आयत हमें ये पहले से नंबर से बता रही है, ये आयत या तो 14 की शान में या 5 की शान में। तो अल्लाह हमसे क्या तलब कर रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करें, वातिउर रसूल, रसूल की इताअत करें, व उलिल अम्र मिनकुम, और साहिबान अम्र की इताअत करें। 3 तबकों पर हुक्म दिया जा रहा है ना हमें। 3 तबकों की इताअत का, पैरवी का। यानी ऐसे कह दूं, अगर मुर्शिद बनाना है तो अल्लाह को बनाओ, मुर्शिद बनाना है तो रसूल को बनाओ, मुर्शिद बनाना है तो उलिल अम्र को बनाओ। ये तर्जुमा समझ में नहीं आया ना? हजम नहीं हुआ ना ये? तवज्जो है कि नहीं? असल मुर्शदी और मुरीदी जो स्टार्ट होती है ना, अल्लाह से होती है। अगर कोई अल्लाह को मानता ही ना हो, अल्लाह की मुर्शिदी मुरीदी में आता ही ना हो, अल्लाह को अपना मुर्शिद ना माने, मुर्शिद कहते हैं हिदायत देने वाला, मुरीद कहते हैं हिदायत लेने वाला, जिस मुर्शिदी और मुरीदी में तरफ सीधा ना हो, अच्छा भाई, अगर हम किसी बड़ी सी बिल्डिंग पर सवार होना चाहें, बिल्डिंग पर जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? नीचे से सीढ़ी लगाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ तो सिलसिला ही कुछ उलट है। मुर्शिदों की तरफ जाना है नीचे, लेकिन आना ऊपर से है, आना ऊपर से है। अगर नीचे से जाएंगे, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे, वो आगे अगर ले जाए तो जाओगे ना, उसका सिलसिला मिलेगा तो तुम्हें ले जाएगा ना। अगर उसका सिलसिला ही ना मिला तो वो भी गुमराह, तुम भी। देखे, दुनिया वालों ने कुरान मजीद से मुर्शिद लेने के बजाय अपनी मर्जी से मुर्शिद बना लिए। सादात की पैरवी करते तो पता चलता कि इनका सिलसिला नसब कहीं मिलता है, उसकी पैरवी में ये आ रहे हैं और मजहब है हक्का पर है। अगर पैरवी सादात की करें और मजहब हक्का की तरफ ना ले जाएं तो इतना समझ लेना, ये सैयद उनमें से नहीं है। जो अपने आबा अजदाद तक ना ले जाए, गैरों का दर दिखा दे, गैरों के दरवाजे पर ले जाए, ऐसी पीरी मुरीदी किसी काम की नहीं है। भाई इताअत करनी है ना, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। इताअत किसे कहते हैं?
जैसा कहे वैसा करो। हम भी तो ऐसा करते हैं ना, मुर्शिद जैसा कहता है हम ऐसा करते हैं। क्या बात। दुनिया वाले दर दर की ठोकरें खाते हैं, जिनकी नजर इस दर पर पड़ती है ना, वो दर बदर नहीं होते। एक मिसाल दे रहे थे फकीर की। फकीर भी मांगता है किसके नाम पर? उनके नाम पर मांगता है ना। अगर उनके नाम पर ये सही से मांग लेता ना, तो इसे दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं। बचा है कि नहीं? अगर उनके नाम से सही से मांग लेता तो इसे मांगने की जरूरत ही न पड़ती। दर बदर की ठोकरें वही खाता है जिसने इस दर से मांगा नहीं है। जो मांग लेते हैं वो दर बदर की ठोकरें नहीं खाते। यही तो एक दर था। 6 माह तक रसूल इस दरवाजे पर आते रहे। जब आयत ततहीर नाजिल हुई तो 6 माह तक रसूल इसी दरवाजे पर आते रहे। दरवाजे पर आकर कहते थे अस्सलात अस्सलात, सुबह के वक्त। यानी ये बतलाना चाह रहे थे कि मेरे दिन की इब्तिदा इस दरवाजे से हो रही है, तो तुम्हारा दिन कहां से स्टार्ट हो? जब नबी की इब्तिदा दिन की इस दरवाजे से हो, 6 माह तक मुसलसल आना और कहना अस्सलात अस्सलात अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। इसी दरवाजे पर आकर क्यों बतलाना ये चाह रहे थे कि ये दरवाजा देख लो, ये समझ लो किसी और दर पे नहीं जाना। अगर कोई दूसरे दरवाजे पर चला जाए तो नुकसान क्या है? सूरह इब्राहिम में आवाज दी बारज़ू लिल्लाहि जमीअन, सारे के सारे खुदा के पास हाजिर होंगे। फ़क़ाल अल्लज़ीना ज़अफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन। वहां पर कमजोर अकीदे वाले कहेंगे उन मुस्तकबरीन से, हम तो तुम्हारे पैरोकार थे। इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, हम तो तुम्हारे पैरोकार थे, हम तो तुम्हारे मुरीद थे। फहल अंतुम मुगनून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाह मिन शै, क्या तुम हमें खुदा के अजाब से बचाते हो? हम तो तुम्हारे मुरीद थे, तुम्हारे पीछे थे, तुम्हारी इताअत करने वाले थे। फहल अंतुम मुगनून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाह मिन शै, क्या तुम खुदा के अजाब से हमें बचा सकते हो? फक़ालू, फिर वो कहेंगे लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम, अगर खुदा हमारी हिदायत करता, लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम, अगर खुदा हमारी हिदायत करता तो हम तुम्हारी हिदायत करते। मालना मिन महीस, यहां से तो भागने का रास्ता ही नहीं। अगर खुदा हमारी हिदायत करता तो हम तुम्हारी हिदायत करते। मालना मिन महीस, यहां से तो भागने का कोई रास्ता ही नहीं। सारी उम्र जो भागता रहा हो, समझा है कि नहीं? मुरीद ऐसे के बनो कि जिसका खुदा बनाए। पहली मुरीदी अल्लाह की, पहली इताअत अल्लाह की, दूसरे नंबर पर रसूल की, तीसरे नंबर पर औलिल अम्र की। औलिल अम्र भी ऐसा वैसा ना हो, औलिल अम्री हो। औलिल अम्र समझते हैं? 2 लफ्ज हैं, ईद उल फित्र, ईद उल कुर्बान, 2 लफ्ज। ईद मुबाइला, ईद शुजा, 2 लफ्ज। औलिल अम्र 2 लफ्ज, 2 का मुरक्कब है। हमारे यहाँ जितने नाम रखे जाते हैं वो भी ज्यादातर 2 के मुरक्कब होते हैं। अब्दुल गफ्फार, अब्दुल रज़ाक, गुलाम अली, मोहम्मद अली, अली मोहम्मद, 2 ही नाम फकत ऐसे हैं जहां अली को आगे रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे चले अगर पीछे से ना, आदम सबसे पहला नबी है ना, उसके आगे रख दे मोहम्मद आदम, बड़ा खूबसूरत है। अगर किसी का नाम रखा जाए आदम मोहम्मद तो सेट नहीं होता। इब्राहिम मोहम्मद सेट नहीं आता, मोहम्मद इब्राहिम सही लगता है। वाहिद 2 नाम हैं, अली और मोहम्मद के। आगे अली रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे मोहम्मद रख दो तो कोई फर्क नहीं। भाई ये कोई
مثال نہیں ہے کہ نام رکھنے میں کیا فرق پڑتا ہے. میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں اللہ نے اسی طرح کا بندوبست ہے. میری انگلیوں کی طرف دیکھنا, ایک مرتبہ کا اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کرنا علیحدہ سے کہا. دوسری مرتبہ اطیع الرسول و اولی الامر, اطیع الرسول و اولی الامر, رسول کی اطاعت کرنا, اولی الامر کی کرنا. اپنے لیے اطیع علیحدہ استعمال کیا, رسول اور اولی الامر کے لیے ایک ساتھ استعمال کر دیا. یعنی رسول کی اطاعت بھی وہی اطاعت ہے جو اولی الامر کی اطاعت ہے. چاہیے جو رسول کے آگے بھی ہو تو فرق نہ پڑے, رسول کے پیچھے چلا جائے تب بھی فرق نہ پڑے, رسول کے کاندھوں پر سوار ہو جائے تب بھی فرق نہ پڑے. بھائی رسول کا ہر قول و فعل سنت تو ہوتا ہے نا, اتنا تو ہر کوئی مانتا ہے نا. اگر رسول کہیں جانے کے لیے, کسی طرف جانے کے لیے, کسی اونٹنی پر سوار ہونے کے لیے, کسی اونٹنی پر سوار ہونے کے لیے کسی کی پشت کا سہارا لے لے, پشت پر پاؤں رکھے اور اونٹنی پر سوار ہو جائے, یہ بھی ایک فعل ہے. کسی کو اٹھا کر کاندھوں پر کھڑا کر دے, یہ بھی ایک فعل ہے. یعنی اتنا تو پتا چلتا ہے نا رسول جہاں پاؤں رکھتا ہے, رسول جہاں پاؤں رکھتا ہے وہ کوئی اور ہوتے ہیں جن کے پاؤں اپنے کاندھوں پر اٹھا لے. رسول ایسے ہونے چاہیے دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہ ہو. اب کہا رسول اور پھر سے کہا اولی الامر. اولی الامر کیسا ہو؟ امر پر کنٹرول رکھنے والا ہو. اولی الامر ہو یعنی امر پر کنٹرول رکھنے والا ہو. امر اس کی دسترس میں ہو, امر کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہو, امر اس کے ہاتھوں سے خالی نہ ہو, اس کے ہاتھوں کے اندر امر ہو. جیسے میں مثال دیتا ہوں, یہ رومال میرے ہاتھوں میں ہے نا, یہاں کسی سے ماچس لے کر میں سے جلا بھی سکتا ہوں, پانی میں ڈبو تو ڈبو سکتا ہوں. آپ کا اختیار نہیں ہے اس رومال پر. اگر وہاں سے اٹھ کر مجھ سے چھین کر اس کو آپ جلا دیں گے تو آپ غاصب کہلائیں گے. جو کسی کا امر لے دے وہ اولی الامر نہیں بنتا, غاصب ضرور بنتا ہے. اولی الامر پورا اختیار رکھتا ہے, جیسے چاہے تصرف کرے, جیسے چاہے اس میں اپنا تصرف کر لے. وہ رومال اس کا ہے, اگر اس رومال کے اندر نجاست آ جائے تو کیا کریں گے؟ اس کو پانی میں ڈبوئیں گے, پھر اس کو نچوڑیں گے. ایسا ہی کریں گے نا ہم, پانی میں ڈبو کر اس کو نچوڑیں گے ہم. اسلام کے اندر اگر نجاست داخل ہو جائے, کبھی کبھار سوال ہوتا ہے کہ یزید سے حسین نے جنگ کی, یزید سے حسین نے جنگ کی, وہ برا تھا, لیکن جس سے امام حسن نے صلح کی تھی وہ تو اچھا تھا, کیونکہ اس سے صلح کی تھی, اس کے ساتھ بیٹھے, اس کے ساتھ صلح کی. بھائی سمجھنے کی بات تو یہ ہے, ایک امام صلح کر رہا ہے, دوسرا امام جنگ کر رہا ہے, یہ دونوں کے فعل میں تضاد ہے کہ نہیں؟ بات مشکل تو ہو گئی نا, دونوں کے فعل میں تضاد تو ہے نا. جتنا یزید تھا اس سے بڑھ کر اس کا ابو تو اس کا باپ تھا نا, اس کی اور کیا تعریف کی جا سکتی ہے؟ بھائی یزید کا بھی باپ تھا, ایسا ہے کہ نہیں؟ اب جب نجاست کے اندر دونوں برابر ہیں تو ایک جنگ کر رہا ہے, دوسرا صلح کر رہا ہے, اور رسول خدا بھی فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان کاما او قعدا, حسن اور حسین تمہارے امام ہیں, چاہے جنگ کرے چاہے صلح کرے. ایک جنگ کر رہا ہے, دوسرا صلح کر رہا ہے. جنگ اور صلح کا ترجمہ بتا دوں, صلح کہتے ہیں اپنی طرف کھینچنا, کسی کو اپنی طرف کھینچنا ہو اس سے صلح کی جاتی ہے, اور کسی کو دھکیلنا ہو
اس کو جنگ کہا جاتا ہے. جب اسلام جیسے پاک دین میں یزید اور اس کے باپ جیسی نجاست آ جائے تو ایک امام اپنی طرف کھینچتا ہے, دوسرا امام پلٹا پھیرتا ہے. سمجھ آئی بات یا نہیں؟ بالکل. یعنی اپنی طرف کھینچنا اور دوسرا ہاتھ مروڑنا یعنی جنگ کرنا. یہ دو ہاتھ جب رومال پر پڑتے ہیں نا, رومال سے نجاست کو نکال دیتے ہیں. اسی طرح تو دو ہاتھ تھے نا, ایک حسن کا ہاتھ تھا, ایک حسین کا, انہوں نے اسلام کی نجاست ہی نکال دی. بس جہاں جہاں جس جگہ پر دیکھیں کہ دین کے اندر نہ یزید ہے نہ یزید کا باپ ہے, سمجھو وہ دین پاک و پاکیزہ ہے. جہاں یزید بھی داخل ہو, اس کا باپ بھی داخل ہو, وہ ابھی تک دین بنا ہی نہیں, وہ نجاست میں ہے. تو اولل امر کہتے ہیں جس کا پورا اختیار ہو, قدرت ہو, جس کی قدرت کاملہ ہو, اختیار رکھتا ہو. کیوں بھائی میں نے ایسا ترجمہ کر دیا قدرت رکھتا ہو؟ سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے کن فیکون. ایک چھوٹی سی مثال ہے نا, اللہ کا امر یہ ہے انما امرہ, اس کا امر یہ ہے اذا اراد شیئا, جس شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کون فیکون, اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی اول امر کی طاقت یہ ہے کہ جسے کہے ہو جا. جسے کہے ہو جا وہ ہو جائے, اسے کہتے ہیں امر. اب امر کون دے گا؟ تو اور میں دیں گے کسی کو امر نہیں, امر دینے والا وہ ہے, اس کی مرضی ہے تجھے اولل امر بنائے, مجھے اولل امر بنائے, یا جس کو وہ چاہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, جیو. جس کو وہ چاہے گا وہی بنائے گا نا. اب جس کو وہ اولل امر بنائے گا تو اسے امر کا اختیار تو دے گا نا, امر کا اختیار تو دے گا نا. امر قدرت تو اس کے ہاتھ میں ہے نا. تو جو اولل الامر ہوگا وہ بھی تو جس کو چاہے گا وہ کہے گا کون فیکون. کیا بات, کیا بات. میں نے تو سمپل کہہ دیا نا, اتنا کہے گا کون فیکون وہ ہو جائے گی, وہ کہے گا کون فیکون وہ ہو جائے گی. اچھا بھئی کون فیکون تو اتنی چھوٹا لفظ ہے نا, کسی سے کہہ دے اے عورت تیرا کیا مردوں کی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون فیکون سورہ یونس میں کہا, سورہ یونس میں, سورہ بنی اسرائیل میں, عفواً سورہ بنی اسرائیل میں, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. میرے حبیب تیرے پاس آ کر سوال کرتے ہیں یہ روح کیا ہے, انہیں بتا دو. قل الروح من امر ربی, روح امر ربی ہے, روح امر ربی ہے. امر تو بڑا ہے, روح اس کا جز ہے, روح امر ربی ہے. اولل الامر وہ ہوگا جو روح پر کنٹرول رکھے, روح پر کنٹرول رکھے. اگر جس کا روح پر کنٹرول نہ ہو وہ اولل الامر تو نہیں بن سکتا نا. اولل الامر وہ ہوتا ہے جو روح پر کنٹرول رکھے. اولل الامر انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. امر یہ ہے کہ جس چیز کو کہے کن فیکون. اور خود ہر بندے سے خدا کہتا ہے. میں نے اولل الامر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا امر پر کنٹرول ہو, اور ہر بندے سے کہتا ہے عبدی اطیعنی, حدیث قدسی میں میرے بندے میری اطاعت کر. اجعلک ان تقول کن فیکون. ہر بندے سے کہہ رہا ہے, اس نے کھلا چیلنج دے دیا ہے عبدیتین, میرے بندے میری اطاعت کر. ان تقول کن فیکون, تو کہے گا کن فیکون وہ ہو جائے گی. تو یہ طاقت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں اتنا تو کہتا ہوں اولل الامر تو ایسا ہو نا جو کہے وہ ہو جائے. اگر کوئی ایسا نہ بنے کہ جو کہتا ہوں میں کبھی سیدھا چلتا ہوں, میرے ساتھ شیطان ہے, کبھی میں سیدھا چلتا ہوں کبھی ٹیڑھا
ہو جاتا ہوں. جب میں سیدھا چلوں تو میری پیروی کرنا, اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. ارے جن کا خود پر جن کا خود پر اختیار نہ ہو وہ کسی اور پر اختیار کیا رکھیں گے. دنیا کے اندر یہی وہ چیز تھی کہ رسول خدا نے ایک مرتبہ چاند کی طرف اشارہ کیا, 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. چاند کو اشارہ کیا نا, سورج کو تو نہیں کہا تھا نا. اور علی نے زمین پر بیٹھ کر 13 مرتبہ سورج کو پیچھے پلٹایا. وہ چاند کو پلٹا رہا ہے, یہ سورج کو پلٹا رہا ہے. وہ چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے اور وہ سورج کو کہتا ہے پلٹ کے آ جا. یعنی چاند اس کی مان رہا ہے, سورج اس کی مان رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آ جاؤ قرآن کے اندر, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی, والقمر اذا تلاها, اور مجھے قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. چاند کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم, سورج کی قسم, اس کی روشنی کی قسم, چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورج آگے چاند پیچھے, سورج آگے چاند پیچھے. یعنی آگے پیچھے تو نہیں کیا نا, میں نے تو پہلے ہی بتا دینا, علی کو آگے رکھو, محمد کو پیچھے رکھو, محمد کو آگے رکھو, علی کو پیچھے رکھو, کوئی فرق نہیں ہوتا. ایسے ہی کہا تھا نا. یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی, اور قسم ہے اس چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. یعنی سورج آگے ہے, چاند پیچھے ہے. اب سورہ یاسین میں آ کر کہا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ, اس سورج میں تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ چاند کو پہنچ سکے. سورہ شمس میں کہا کہ سورج آگے چاند پیچھے. سورہ یاسین میں کہا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ, اس سورج میں تو یہ طاقت ہی نہیں کہ چاند کو درک کر سکے. اس سورج میں تو یہ طاقت ہی نہیں کہ چاند کو درک کر سکے, چاند کو پکڑ سکے. یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے چاند آگے جا رہا ہے, سورج اس کے پیچھے جا رہا ہے. اب تو سوال تو ہو گیا نا, ایک چاند پر دسترس رکھتا ہے, ایک سورج پر رکھتا ہے. ادھر سے ایک مرتبہ قرآن کہہ رہا ہے کہ چاند, سورج آگے ہے, چاند پیچھے ہے. دوسری جگہ پر وہی قرآن کہہ رہا ہے چاند آگے ہے, سورج پیچھے ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا, قرآن میں تضاد ہے نا. سمجھے کہ نہیں؟ صلوات پر محمد و آل محمد. مجھے پرچی دی گئی ہے کہ مجمع آپ کے ساتھ بول نہیں رہا, آپ اور بھی زیادہ پڑھیں. بسم اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ زیادہ پڑھیں, وجہ یہی ہوگی کہ آپ بول نہیں رہے میرے ساتھ. مجھے دلوا دے تو پھر میں جس نے لکھی ہے اس کو پتہ چلے گا تو کیسے بولے گا. انا سوری جو نظر اللہ نے آجائے حسین علیہ السلام, تھوڑا سوریہ چوبا ایک دو نعرے لگ جائیں تو یہ سردی جو ہے نا ختم ہو جائے گی. مجھے تو پسینہ آ رہا ہے, میں زور لگا رہا ہوں, پسینہ آ رہا ہے. سورج آگے چاند پیچھے. سورہ یاسین میں کہا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ, اس سورج میں یہ طاقت نہیں کہ چاند کو درک کر سکے. اتنا تو پتہ چلا نا, سورج آگے بھی ہوتا ہے, سورج پیچھے بھی ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک در اہل بیت سے تفسیر نہ لی جائے, ساری عمر 2 آیتوں میں پھنسے رہو گے, سورج آگے کہ چاند آگے ہے.
सारी उम्र फंसे रहेंगे ना। ये सूरज आगे कि चांद आगे है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूरज आगे जा रहा है, चांद उसके पीछे पीछे आ रहा है। सूरह यासीन में कहा जा रहा है कि लशम्स यंबग़ी लहा अन तुदरिकल कमर, सूरज में ये ताकत नहीं चांद को पकड़ सके। वहां ये पता नहीं चलता कि आगे चांद है, यहाँ पता चलता है कि यहाँ पीछे चांद है। अली की ताकत को देखा, अली की ताकत को देखा, इस माइक पे रोका गया था, अली ने आज वही माइक मुझे दिला दी। मरहबा मरहबा। नारा लगने से, बीच में बोलने से डिस्टर्ब नहीं होते हम। ये एक इजहार होता है आपकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। जियो जियो। 1 घंटा 1.5 घंटा जो हम बैठे हैं ना, कम से कम सिर्फ बोलने वाला मैं ना ठहरो ना, आपकी आवाज भी आनी चाहिए। फरिश्ते जिस तरह मेरे ऊपर गवाह बने, इसी तरह आपके ऊपर भी गवाह। सूरज आगे चांद पीछे, और कहता है सूरज में ताकत नहीं चांद को दर्क कर सके, पकड़ सके, सूरज में ये ताकत ही नहीं। तो ये नहीं इतना पता चला ना, अगर दोनों आयतों को रखेंगे सारी उम्र तक कुरान समझ में नहीं आएगा। जब दर अहले बैत पर आएंगे तो कुरान भी समझ में आएगा। तभी तो इमाम जाफर सादिक ने कहा, जैसे ही शम्से नबूवत, शम्से नबूवत अपने सहन में जलने लगे, क्या बात है, क्या बात। अल्लाह ने जैसे देखा कि नबी मेरा चल रहा है, तो आवाज दी, वह शम्से वद्दुहाहा। यहाँ पर मुराद शम्स कौन था? शम्से नबूवत। जैसे ही कमरे इमामत अली पीछे चले, आवाज बल कमर इदा चलाहा, और मुझे कसम है उस चांद की जो इस शम्स के पीछे आ। सूरज आगे था, चांद पीछे था। आगे चलने वाला शम्स था, पीछे आने वाला चांद था। आगे चलने वाला शम्स नबूवत, पीछे आने वाला कमरे इमामत। अब ये थे ये सूरज और चांद, और वहां पर जो कहा लशम्स यंबग़ी लहा अन तुदरिकल कमर, इस सूरज में ताकत ही नहीं इस चांद को पकड़ सके। ये चांद आगे जाएगा, ये सूरज ज़ाहिरी। ये ज़ाहिरी सूरज इस चांद को पकड़ नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता। तो मालूम हो यहाँ पर जो सूरज और चांद थे कोई और थे, वहां पर सूरज और चांद कोई और है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तभी तो उलुल अम्र वो होता है जो हर चीज पर तसर्रुफ रखे। शम्से नबूवत नबी थे, तो अली ने कहा पलट के आ जा, कमरे इमामत। अली थे तो नबी ने उंगली से इशारा किया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। 2 हिस्सों में 3 हिस्सों पर तकसीम नहीं हुआ। बतलाना ये था कि इमामत का पहला सूरज, इमामत का पहला चांद अगर तकसीम होगा तो 2 हिस्सों पर होगा। नहीं समझा? सुभान अल्लाह। 2 हिस्सों पर तकसीम होगा। किफलैन मिन रहमत ही, किफलैन मिन रहमत के 2 टुकड़ों पर तकसीम होगा। किफलैन मिन रहमत ही, एक तरफ से हसन होगा तो दूसरी तरफ से तसर्रुफ रखता है उलुल अम्र। अम्र किस पर तसर्रुफ है? मौत पर है, यानी रूह अम्र है। उलुल अम्र वो होगा जो रूह पर कंट्रोल रखे, हर चीज पर अपना पूरा तसर्रुफ रखे। हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना, मारने वाला नहीं इजराइल है एक, जबकि कुरान हमें बताता है अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह मारता है नुफूस को जब मौत आती है। फिर कहीं पर कहा
कैफ तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबून अदबारहुम। सूरह सजदा में जब वो मरेंगे, मलाइका जब इनकी रूह निकालेंगे तो वो अपने पांव लगाएंगे। मलाइका भी मारते हैं। मलकुल मौत भी क्या देता है? मौत देता है। इन मारने वाले 3 तबकों का तस्करा है, अल्लाह का, मलकुल मौत का और फरिश्तों का। तवज्जो है मेरी तरफ। मौत पर तसर्रुफ रखता है कौन? उलुल अम्र। क्यों? कैसे? तवज्जो है कि नहीं? सल्लल्लाहु मोहम्मद आले मोहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा भाई, जब हम देखते हैं कि मौत एक मखलूक है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीरुन अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। जिसने मौत को भी खल्क किया, हयात को भी खल्क किया। मौत है मखलूक, हयात भी मखलूक। उलुल अम्र क्या है? जो हर चीज पर क्या रखे? कंट्रोल रखे। उसका मौत पर भी कंट्रोल होगा, हयात पर भी कंट्रोल होगा। अरे जो मौत और हयात से पहले हो, ये कुदरत देने वाला और कुदरत लेने वाले, अगर ये समझ में आ जाए ना हमें, तो ये शिर्क के फतवे सारे निकल जाएंगे। हम शिर्क का फतवा जल्दी से इसलिए दे देते हैं, हम कुदरत लेने वाले की ताकत से ना खबर है और कुदरत देने वाले से भी ना खबर है। तब हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती। जब हम समझ ले कि वो देता कैसे है और ये लेते कैसे हैं। अम्र 2 तरह के होते हैं, अम्र तशरीई और अम्र तकवीनी। अम्र 2 तरह के होते हैं, अम्र तशरीई, अम्र तकवीनी। जब हम अम्र तशरीई पे बात करते हैं, अम्र शरई पर बात करते हैं, तो किसी को कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि उलुल अम्र वो होता है जिसकी मर्जी है, जो काम करे वो शरीयत बनता चला जाए। शरीयत ऐसे नहीं बनती। उलुल अम्र आकर जो करता चला जाता है, जो समझाता चला जाता है, वही शरीयत बनती चली जाती है। अंगूठी दे दे तो आयत आ जाती है, कुरान बनता चला जाता है। उलुल अम्र काम करता चला जाए, आयतें भी आती जाए, शरीयत भी बनती जाए। तकवीन कहते हैं खारिज में ये क्या हो रहा है। सुभान अल्लाह। खारिज में क्या हो रहा है? सूरज कहां से तुलू हो रहा है, किस तरफ गुरूब हो रहा है, इस पर जिसकी दस्तरस्त हो उसे भी उलुल अम्र कहते हैं। लेकिन खारिज में, तकवीन में समझना बड़ा मुश्किल है। क्या बात। देखिए, जिस चीज को समझना हो ना मुश्किल है कि कैसे जमीन पर बैठकर हर चीज आपको समझ में आएगी। इतना कभी समझा कि ये चांद 2 हिस्सों में कैसे तकसीम हुआ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझा ना? कभी गौर किया कि ये चांद 2 हिस्सों में कैसे तकसीम हो गया? क्या उंगली के अंदर इतनी ताकत होती है? क्या बात, क्या बात। एक इंसान जब पैदा हो जाए, अब्दुल्ला के घर में, जनाबे अब्दुल्ला के घर में पैदा हो जाए और जाहिरी एतबार से पता चले 40 साल के बाद नबी भी बना। ऐसा है ना? 40 साल के बाद नबी भी बना। आफा इन माता औ कुतिला, अगर मारा जाए या कत्ल हो जाए तुम पलट जाओगे। यानी इसका मतलब ये मर भी सकता है, कत्ल भी हो सकता है। यानी इसका मतलब इसका कोई सिलसिला नहीं। अब उसकी उंगली में इतनी ताकत कहां से आ गई? जब ये आजिज और नाचीज था, आजिज था, खुद मोहताज था, इसकी उंगली इतनी ताकतवर कैसे बन गई? क्या बात है, क्या बात। हम आजिज और नातान जरूर हैं, लेकिन ताकत देने वाला जो है वो तो आजिज नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अम्र तकवीन में आकर अब अली ने चांद को
नहीं, सूरज को पलटाया। नबी ने चांद को 2 हिस्सों में तकसीम किया, अपनी ताकत का इजहार किया। ऐसा है ना, तकवीन इसको कहते हैं। अगर किसी को और भी समझ में ना जाए तो जाकर कभी मसाइल तो देखे ना, कुआं जो है ना कड़वा हो, लुआब दैन फेंका जाए, मीठा हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। रोटी के चंद टुकड़ों से अरबों के पेट जो भरते ना हो बकरों से। जियो जियो जियो, क्या बात है। दूध के एक कटोरे से उनका पेट भर जाए तो ये मामूली बातें नहीं हुआ करती। यानी पहले तो मनवाया ना, ताकत होती क्या है। अच्छा, अगर कुरान पढ़ना हो, एक रकाब से दूसरी रकाब तक पांव आ जाए तो कुरान खत्म हो जाए। क्या बात है। और इतना तसर्रुफ हो कि अगर कोई पूछने वाला पूछे, बगैर सोचे समझे जवाब दे दिया जाए। अगर पूछे कि कौन सी चीजें बच्चे देते हैं, कौन सी अंडे देती हैं, बगैर सोचे समझे जवाब दे दे। जिसके कान बाहर हों बच्चे देंगे, जिसके अंदर हों दे देंगे। फिर एतराज करने वाला एतराज करे, आपने तो देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं। कहा कि तुम्हारे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? क्या बात है। कहा 5 है। क्या तुमने सोचा? कहा ये तो 24 घंटे मेरे सामने है ना। तो इसी तरह मौला ने कहा ये पूरी कायनात भी तो मेरे सामने है। भाई हाथ बुलंद करे, सर्दी में लोग कोई वीडियो का थोड़ा गर्मी पैदा दे। नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली, बुलंद हाय सलाम। तसर्रुफ हो, अख्तियार हो, कुदरत हो। सूरह आल इमरान के अंदर, सूरह आल इमरान के अंदर, सूरह बकरा के अंदर, सूरह आल इमरान के अंदर 2 नबियों का तस्करा किया गया है। एक का नाम है हजरत इब्राहिम, दूसरे का नाम है हजरत मूसा। हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा नहीं, हजरत ईसा। तवज्जो मेरी तरफ है। हजरत ईसा कहता है इन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन का हयात तैर। बड़ा सा जुमला है ना, इन्नी अखलुकु लकुम, मैं खल्क करता हूं। कैसा जुमला है? इन्नी बेशक, मैं खल्क करता हूं, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनत तीन, मट्टी से, का हयत तैर, परंदे जैसा, फयकून तैरन बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के दिए हुए इज़्न से ये परिंदा बन जाएगा। हम तो कहते हैं खालिक तो वो है। ये छोटा मोटा खल्क करना ये खल्क नहीं कहलाता, इसको खालिक नहीं कहते। हम जब खालिक कहते हैं उसका मतलब है खालिक को कुल्ले शय। इस गिलास को भी तो किसी ने खालिक किया है ना। ये खालकियत महदूद है, उसकी खालकियत लामहदूद है। जियो जियो, क्या बात है, क्या बात। इन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन का हयात तैर, मैं परिंदा खल्क करता हूँ। फयकून तैरन बिइज़्निल्लाह, फिर वो परिंदा उड़ता चला जाएगा। हजरत इब्राहिम ने भी सवाल किया था ना, रब्बे अरनी, मेरे रब मुझे दिखा दे, कैफ़ तुह्यिल मौता, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। सुभान अल्लाह। जियो, कैफ़ तुह्यिल मौता, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। काला अवलम तुमिन, क्या इब्राहिम तुझे ईमान नहीं है। काला लियत्मइन्न क़ल्बी, ईमान तो है लेकिन दिल मुतमईन हो। जियो जियो, दिल मुतमईन हो, लियत्मइन्न क़ल्बी, दिल मुतमईन हो। काला फखुद अर्बअतन मिन अत-तैर, का 4 परिंदे पकड़ लो, फसुरहुन्ना इलैक, उनको अपने साथ मानूस कर। जियो, थुम्मा इजअल मिनहुन्ना जुज़अन अला कुल्li जबलिन, फिर उनके अज्जा बनाकर जबलों पर रख कर आना। हाय 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 हाय, गोश्त के अज्जा बनाकर जबलों पर रख कर आना। थुम्मा, उसके बाद खुदा कह रहा उदऊहुन्ना, इब्राहिम तुम उनको पुकारना, मैं नहीं। थुम्मा उदऊहुन्ना, उनको पुकारना। यातीने का साया, ये परिंदे तेरी तरफ दौड़ते चले आएंगे, वाह वाह वाह, दौड़ते चले आएंगे, ये परिंदे तुम्हारी तरफ दौड़ते चले आएंगे। इब्राहिम परिंदे पकड़ता है, उनको ज़बा करके उनका गोश्त
रेजा रेजा कर कर 4 मुख्तलिफ जबलों पर रख कर उनकी चोंचें अपने हाथ में रखकर, तवज्जो है ना मेरी तरफ, उनकी चोंचें अपने हाथ में रखकर एक मर्तबा बुलाने के लिए रुक जाता है। आवाज कुदरत है, इब्राहिम पुकार, ये परिंदे हैं, ये परिंदे हैं। सोचा उसने शायद पुकारूं ना है, दिल में सोचा मैं पुकार, ये परिंदे तू पुकार। सुम्मा उदऊहुन्ना, तू उन्हें पुकार। जैसे इब्राहिम ने कहा हल्लुम्मु इलैया, जियो जियो, हल्लुम्मु इलैया, मेरी तरफ चले आओ। वो परिंदों की चोंचें उसके हाथ में थी, परिंदों का गोश्त उड़ने लगा, उड़ उड़ कर एक दूसरे से मिलने लगा। जो जिसका था उसकी तरफ पलटता चला गया। इब्राहिम चोंचे तब्दील करता था, वहां से गोश्त तब्दील हो जाता था। गोश्त तब्दील हो जाता था, इब्राहिम चोंच तब्दील करता था, गोश्त तब्दील हो जाता था। यही तो मतलब है, जो जिसका होता है ना वो उसी के साथ चला जाता है। हम यही चाहते, हम जिसके हैं उसके साथ मुंसलिक हो जाए। अरे वो जिनके हैं अल्लाह उनके साथ उनको मुंसलिक करे। कुदरत दिखा दी, कुदरत दिखा दी ना परवरदिगार ने, कैसे जिंदा थे। अब क्या इब्राहिम ने सारा कुछ जिंदा किए थे? नहीं, देने वाला कुदरत वही रब था। तू पुकार, तेरी तरफ आ जाए। उसने कह दिया तो कह दिया, दे दिया तो दे दिया। अब उसमें कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। इससे कोई दीन खराब नहीं होता, इससे कोई मजहब खराब नहीं होता। अरे जितने मुर्शिद बाकमाल होंगे, क्या बात है, क्या बात है, उतने ही तो मुरीद बाकमाल होते हैं ना। अगर मुर्शिद में कमाल ना हो, मुर्शिद बेकार तो मुरीद बेकार। यही तो तुम्हारी और हमारी सोच का फर्क है लोगों के साथ। जो चीजें तुम्हें दिखाई देती है उनको क्यों नहीं दिखाई देती? जो चीजें तुम पढ़ लेते हो वो क्यों नहीं पढ़ लेते? जो चीजें तुम्हें समझ में आती है उन्हें क्यों नहीं आती? जियो जियो। वजह क्या है? वजह यह है कि तुम्हारे मुर्शिद बाकमाल है। ऐसे वैसे नहीं। इमाम ज़माना का एक जुमला मिलता है हमें, क्या शियो, क्या हमने तुम्हें तन्हा छोड़ा हुआ है? ये ऐसा हरगिज नहीं। कमाला कैसे? कहा कि कभी कभार कहीं पर तुम्हारी किसी से अगर बहस में उलझ जाओ और तुम ऐसे ऐसे जवाब दे देते हो जिन जवाबों के बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं। जियो जियो जियो। जिन जवाबों के बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं होता, वो कहां से आ जाते हैं कि ये हमारी तरफ से तुम्हें अता होती है। उनका ये लुत्फ होता है। आप तसर्रुफ जितना होता है तो बाख्तियार भी तो उतना होता है ना। अभी लुगत ऐन के मुसन्निफ खलील अहमद इब्न खलील फराहिदी से किसी ने पूछा कि तुमने अली को क्यों इख्तियार किया? किसी और को उलिल अम्र बना देते, किसी और की पैरवी कर लेते, अली को ही तूने अपना इमाम क्यों बनाया? तो उसने एक दो जुमले कहे थे, इल्मी दो जुमले हैं। एहतियाजुल कुल्ले इलैह, क्या बात, क्या बात। एहतियाजुल कुल्ले इलैह व इस्तिगनाहु अनिल कुल। एहतियाजुल कुल्ले इलैह व इस्तिगनाहु अनिल कुल दलीलुन अन्नहुल इमामुल कुल। यानी 3 जुमलों के अंदर, 3 सितर के अंदर उसने पूरे मसले को ही खत्म कर दिया। एहतियाजुल कुल्ले इलैह, ये सारे के सारे इसकी तरफ मोहताज है। सारे के सारे कौन से? जितने भी अली के जमाने में थे, एहतियाजुल कुल्ले इलैह, सब के सब उसकी तरफ मोहताज। व इस्तिगनाहु अनिल कुल, ये सबसे बेपरवाह है। क्या बात है, क्या बात है। यानी इसको जरूरत नहीं पड़ती किसी का दरवाजा खटखटा कर पूछे ये मसला कैसे हल होगा।
पढ़ती है। यही तो दलील है, ये सबका इमाम है, क्या बात, जियो। सबका इमाम है, सबका इमाम पेशवा है, क्योंकि सारे उसके मोहताज है। हम भी तो सालों सदियों से यही बतलाते आ रहे यही हैं। बतलाते हैं, जियो। हम यही तो समझाने की कोशिश, तभी कहते हैं शियों की मजलिसों में चले जाओ, वही जिक्र वही बातें होती हैं। भैया यही बातें तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? क्यों नहीं यार? बातें तो वही हैं, बार बार की जा रही हैं। फदक्किर 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 इन्ना ज़िक्र तनफ़उल कुलूब। ये तज़किरा बार बार जो होता है दिलों को नफा देता है, दिलों को फायदा देता है। कुरान कहता है ना फायदा देता है, और हम बार बार वही तज़किरा करें, तुम्हारी दिलों पर कोई फायदा नजर ही नहीं आता। इतना पता चला जो दिल मुर्दा हो जाए, जियो जियो, क्या बात, जो दिल मुर्दा हो जाए उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। फायदा कैसे मिलेगा? जब मुर्शिद अच्छा ले लिया, जब उलुल अम्र अच्छा ले लिया, जब मुरीदी अख्तियार कर लिया ऐसे लोगों की जिनके अंदर कोई ऐब नहीं है। क्या बात है, क्या बात। वाह भाई, जब तेरे मुर्शिद पे ऐब हो और तेरे अंदर ऐब हो, तेरे मुर्शिद में ऐब हो और तेरे अंदर ऐब हो, कम से कम इतनी तो कोशिश कर अपने मुर्शिदों की लाज रख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई, भाई इतनी तो लाज रख सकते हो ना। भाई अगर कोई इंसान शराब पी रहा है ना, बाहर बैठकर, एक वो शराब पी रहा है जो कमरे के अंदर पी रहा है, दो बंदे हैं ना। शरीयत में सबसे बुरा किसे कहा गया है? जो बाहर पी रहा है, खुद भी खराब हो रहा है, दूसरों को भी खराब कर रहा है। जो अंदर कमरे में पी रहा है वो शराबी तो है, मजम्मत उसकी भी है, लेकिन इतना बुरा नहीं जो बाहर बुराई कर रहा है। लिहाजा इतना जरूर करना, अगर कहीं गुनाह करना हो तो छुपने की जगह रख देना, जहां तुम्हें कोई देखने वाला ना हो। कितना देखने वाला ना हो? कैसा देखने वाला ना हो? ठीक है भाई, अल्लाह की नजरों से तो नहीं बच सकते ना, उसको छोड़ दो, वो गफूर रहीम है, माफ कर देगा, माफ कर देगा। अगर आपकी तलब है तो, उसके साथ तलब है तो माफ कर देगा, गफूर रहीम है। और इसी तरह फसयरल्लाहु, सूरह तौबा में कहा ना, फसयरल्लाहु अमलकुम वरसूलुहु वलमुमिनून, तुम्हारे अमाल को अल्लाह भी देखता है, उसका रसूल भी देखता है, और कुछ मोमिन है जो तुम्हारे अमाल देखते हैं। वो मोमिनून ऐसे हैं जो तुम्हारे अमाल पर उन्होंने नजर रखी हुई है, जिनके साथ तूने जन्नत में जाना है, जिनके सहारे पर तूने जाना है, कम से कम उनकी नजरों से खुद को बचा के रख। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। कितने कमालात के हैं ये, तुझे भी देखते हैं, तुझ पर कंट्रोल भी रखते हैं, तेरे मुर्शिद भी हैं, तेरे हिदायत का जरिया भी हैं, और तेरी खातिर उन्होंने सब कुछ कुर्बान भी कर दिया। जो कुछ था उनके पास सब कुछ तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया। फातिमा से बढ़कर कोई इज्जत वाली बीवी होगी? मुर्शिद जाती है ना तुम्हारी, तुम्हारा हक है उसका नाम सुनकर गिरिया करें, और किसी का हक नहीं बनता, तुम्हारा हक बनता है। सैयदा के मसाए पर गिरिया करें, तुम्हारा हक बनता है। और सैयदा भी ऐसी वैसी सैयदा। बता दूं एक जुमला, हुसैन को पहचानते हो? हुसैन को अल्लाह के नबी ने अपनी गोदी के अंदर एक तरफ हुसैन को बिछाया, दूसरी तरफ इब्राहिम को बिछाया। अल्लाह की तरफ से आवाज है, एक को रख ले, दूसरे को कुर्बान कर दे। नबी ने हुसैन को चुन लिया, इब्राहिम को उसके ऊपर कुर्बान कर दिया, और फखर से कहा करते थे, ये वो है जिस पर मैंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। हुसैन वो है जिस पर मैंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। और बताऊं फातिमा क्या है? फातिमा को देख कर कहते हैं तकब्बल कब्बला, रात सर का बोसा देख कर कहते हैं
फिदा के अबू के, तुझ पर तेरा बाबा कुर्बान हो जाए। फिदा के अबू के फातिमा, तुझ पर तेरा बाबा कुर्बान हो जाए। वो सैयद शहजादी सारी रात अली से पूछती रही, या अली कल मैं दरबार जाऊं, मुझे बताओ मांगना कैसे जाता है। बीबी कोई अपना हक लेने के लिए नहीं गई थी, वो बतलाने गई थी ये बैठे हैं जो कितने जालिम है। मकातिल लिखते हैं, मकातिल के अंदर जुमले मिलते हैं ना, ये सारी रात पूछती रही। सलूनी सलूनी का दावा करने वाला अली भी नहीं बतला सका कि कैसे मांगना है। अरे उन्होंने कभी किसी से मांगा हो तो बताए ना। सैयदा जब दरबार में आती है ना, दरबार में पहुंचती है सैयदा ने कांपते हाथों से वो दस्तार दे दी जो दस्तावेज लिखी हुई थी ना रसूल खुदा की। उस किसी जालिम ने उस दस्तावेज को फाड़ दिया। वो जो दस्तावेज नबी की लिखी हुई थी ना, फाड़ कर नीचे फेंक दी। इतना बता दूं एक जुमला, सैयदा ने जब बैठकर वो दस्तावेज उठाई ना, उठाकर जैसे बुलंद हुई ना, जब बैठ रही थी और जब उठ रही थी, इतने में कितना टाइम लगता है, चंद दकीके लगते हैं ना, चंद सेकंड लगते हैं उठाने में वो पर्चियां। जब बैठ रही थी तो सर के बाल सयाह थे, जब उठ रही तो सारे बाल सफेद हो चुके थे। रोती रोती सैयदा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकता मसाइल, मेरे अंदर इतना कलेजा नहीं कि मैं ज्यादा मसाइल पढ़ सकूं। रोती हुई सैयदा अपने घर के दरवाजे पर जैसे पहुंची ना, घर के जरवा सहन पर आकर अंदर बैठ गई ना, ज़ैनब आलिया कहकर कहती है, ज़ईफा तू कौन है? हमारे दरवाजे पर बैठने वाली ज़ईफा तू कौन है? सर के बाल हटा कर कहते, पहचान ज़ैनब, मैं तेरी माँ ज़हरा हूँ। दरबार के ऐसे हाल देख कर आई हूँ ना, तेरी ये चादर नहीं बचेगी। हाँ, इतना सुनना है ना आपने, इतना तो सुना है ना, सैयदा भी दरबार गई थी, लेकिन एक फर्क था, सैयदा दरबार गई, सैयदा फातिमा तो ज़हरा दरबार गई, और उनकी बेटी शहजादी ज़ैनब आलिया भी दरबार गई थी। फर्क था दोनों की दरबार जाने में। जब सैयदा दरबार जा रही थी ना, मुकम्मल पर्दे में थी, सर पर चादर लिए हुए जा रही थी। अल्लाह, सर पर चादर लिए हुए जा रही थी। लेकिन इतना भी मिलता है, जब सैयदा दरबार जा रही थी ना, दोनों हाथ खुले हुए थे, दोनों हाथ खुले हुए थे। मैं कुर्बान जाऊं शहजादी ज़ैनब पर, जब वो दरबार जा रही थी ना, दोनों हाथ बसे गर्दन और सैयदा जब दरबार गई ना, ऐसा दरबार था कि सब के सब नबी के सहाबी थे, सब के सब नबी के सहाबी थे। मैं कुर्बान जाऊं ज़ैनब आलिया पर, वो जब दरबार जा रही थी ना, सब के सब शराबी थे। मकातिल लिखते हैं, जब सैयदा वापस घर आई ना, सहन में बैठी ना, रोने लगी। अली ने पूछा, फातिमा गिरिया क्यों करती हो? क्या मुसलमानों ने कुछ कहा है तुम्हें? लेकिन इतना मिलता है, फातिमा कहते, मुझे जो कुछ कहा गया मैं उस पर गिरिया नहीं कर रही, मैं तो गिरिया इस बात पर कर रही हूँ, जिस दरबार में मैं जाती थी, मेरा बाबा उठकर मेरा इस्तकबाल किया करता था, वहां किसी ने मुझे बैठने का नहीं कहा। किसी ने मुझे बैठने का नहीं कहा। एक वक्त सैयदा के उस दरवाजे पर वो आया जिस दरवाजे पर आकर नबी सलाम किया करता था, उस दरवाजे को आग लगाई गई।
अली भी अंदर थे ना, दरवाजे को आग लगाई गई। सबसे कठिन, सबसे मुश्किल मरहला होता है शौहर के लिए कि उसकी बीवी पर कोई तमाचे